Okay, welcome to the video where I will be solving all the sums of homework 1. Why? Because I take geometry very seriously. Geometry बहुत difficult होता है, पढ़ाना भी और पढ़ना भी. So I am putting in extra effort. You also put some effort to check your homework. If you have not done the homework, do it right now and learn from this homework. All congruent figures are similar. Congruent मतलब 100% सेम. Yes, those figures which are congruent are always similar. But उसका उल्टा, all similar figures are congruent is false. Look at this circle and this circle. They are similar but they are of different size. Therefore, they are not congruent. All square of any dimension are similar. True. All rectangles of any dimension are similar. False. कोई भी डायमेंशन का रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होता. कंपेयर दीज टू रेक्टेंगल्स. एक चौड़ा सा है, एक लंबा सा है. शेप इज नॉट एट ऑल सेम. देयरफॉर ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर. All equilateral triangles of any dimension are congruent. False. Impossible. How can two equilateral triangles of different dimension, all equilateral triangles of any dimension, they are not congruent. They are similar. इसलिए आंसर आएगा false. The first figure is similar to second figure. इसमें सिमिलर आएगा सिक्स्थ में. फर्स्ट फिगर इज सिमिलर टू सेकेंड फिगर. फर्स्ट फिगर इज सिमिलर टू सेकेंड फिगर इनसाइड द फर्स्ट. मतलब ये दो ट्राइंगल का शेप सेम है, साइज अलग है. सर्कल का शेप सेम है, साइज अलग है. स्टार का शेप सेम है, साइज अलग है. नाइन्थ, द फर्स्ट फिगर इज डैश टू द सेकेंड फिगर. पहले देखते हैं शेप. द शेप इज डिफरेंट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल. और साइज भी अलग है, तो शेप भी अलग, साइज भी अलग. फर्स्ट फिगर इज नॉट सिमिलर एंड नॉट कॉन्ग्रुएंट टू द सेकेंड फिगर. ऐसा आंसर आएगा. इसके आसपास कुछ भी लिखो चलेगा, मतलब यही निकलना चाहिए. Prove similar by using the ratio of sides for triangle ABC and PQR. Prove similar में हमारे पास दो चॉइस है. एंगल सेम दिखाओ या साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाओ. तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, प्रूव सिमिलर बाय यूजिंग रेशियो ऑफ साइड्स. पहला ट्राइंगल का नाम है ABC, दूसरे ट्राइंगल का नाम है PQR. AB, BC, CA अपॉन PQ, QR, RP. AB 5, PQ 2, BC 5√2, QR 2, CA 5, RP 2√2. ये तो नॉट इक्वल है. 5/2 इज नॉट इक्वल टू 5√2/2 एंड दैट्स नॉट इक्वल टू 5/2√2. तो फिर प्रूफ सिमिलर कैसे होगा? द मिस्टेक विच वी डिड, ध्यान से सुनना, द मिस्टेक विच वी डिड, हम नाम के हिसाब से गए. हमने देखा ABC
हमने देखा पी क्यू आर, तो हमने ए बी सी पी क्यू आर लिख दिया, फिर लिखा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये सी ए अपॉन आर पी। इसलिए कुछ मैच नहीं हुआ। वॉट आर यू आइडियली सपोज टू डू इज नॉट लुक एट द नेम्स। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर नाम में कुछ नहीं रखा है, फिगर देखो। तो ये रेशियो भी नहीं चाहिए भगवान। ट्राइंगल के नाम की जगह पे फिगर देखो। 5 5 2 2 5 रूट 2 2 रूट 2। तो ट्राई टू मैच अकॉर्डिंग टू द फिगर सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, सी बी अपॉन पी आर, सी बी upon PR. Now put in the values CA5 PQ2, AB5 QR2, CB5 रूट 2 और ये 2 रूट 2 कट। Therefore 5 रूट 2 is equal, अरे 5/2 is equal to 5/2 is equal to 5/2. Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR. So don't go by the name of the triangle, try to look at the figure. Hence proved that the ratio is equal, the sides are proportional, therefore triangles are similar. Okay, question ऊपर, figure नीचे। Is triangle ABC and triangle LMN similar? If yes, why? And if no, why? Answer is no. तो कैसे लिखोगे? ट्राइंगल ABC not similar to triangle LMN because मतलब उल्टा, therefore because angle A is not equal to L, B is not equal to M and C is not equal to N. एक भी एंगल मैच नहीं कर रहा है। सिमिलर होने के लिए एंगल का मैच करना जरूरी है। आंसर इज नो। Is XYZ similar to PQR? Yes or no, and why? From the figure we observe, from the figure we observe in, और दोनों ट्राइंगल का नाम लिख दो। We observe in triangle PQR and triangle XYZ the following. What do we observe? Angle P is equal to angle X. ऐसा कैसे? सिंबॉलिकली इक्वल है। यहां पे एक सर्कल है, वही सर्कल यहां पे भी है, therefore they are equal. Q is equal to Y because this is a single arc, this is a single arc. ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, this is an indication कि ये और ये एकदम सेम है। And angle R is equal to angle Z because R is a double dash, Z is also double dash. Therefore, triangle PQR is similar to triangle XYZ. तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। Instead of matching the angles, you can match the sides. But side कितनी सारी है? 3, 9,
7.5 और दूसरी तरफ है 5, 6, 2। गम्मे तेम मुकसो तो इक्वल नहीं आवे, तो कैसे अरेंज करने का साइड्स को? सर्कल के सामने की साइड क्यू आर अपॉन सर्कल के सामने की साइड जेड वाई। 7.5 अपॉन 5। देन आर्क के सामने की साइड पी आर, आर्क के सामने की साइड एक्स जेड। पी आर 9, एक्स जेड 6। डबल डैश के सामने की साइड एक्स वाई, डबल डैश के सामने की साइड पी क्यू। एक्स वाई इज 2, पी क्यू इज 3। अढ़ी थ्रीजा, अढ़ी એટલે 2.5, 2.5 थ्रीजा एंड 2.5 टूजा, 3 थ्रीजा एंड 3 टूजा। ये गड़बड़ क्यों हुआ देखो यहाँ पे? बिकॉज मेरे ऊपर वाला ट्राइंगल पी क्यू आर था, तो क्यू आर पी आर के बाद एक्स वाई थोड़ी आएगा, पी क्यू ऊपर एक्स वाई नीचे आएगा। पी क्यू अपॉन एक्स वाई 3/2, 3/2। Hence proved that the sides are proportional. So you can use the angle concept to prove proportionality or side concept. Prove triangle ABC and PQR are similar by using proportional sides concept. Figure indicates that all sides are same for both triangles individually. All sides are same मतलब triangle ABC is equilateral. Therefore, all three sides are same. Therefore, let side of triangle ABC is equal to x. तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब ये सेम स्टोरी दूसरे ट्राइंगल के लिखो। ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्विलैटरल, therefore all three sides are same. Therefore, let the side of triangle PQR is equal to y. Therefore, AB, BC, CA, PQ, QR, RP, all the sides are in the ratio of x upon y. Hence proved that triangles are similar. Draw the figure and then answer. According to the definition of similarity of triangles, which are the conditions for triangle DEF to be similar to XYZ? तो पहले ड्रॉ करो DEF X Y Z, और DEF XYZ को सिमिलर होना है तो एंगल क्राइटेरिया है और दूसरा साइड क्राइटेरिया है। वी विल राइट बोथ, दिस विल एक्ट एज ए रिविजन। ये लगभग 7वीं-8वीं बार में लिखूंगा। फॉर देम टू बी सिमिलर, एंगल D शुड बी इक्वल टू X, angle E should be equal to Y, angle F should be equal to Z, and DE, EF, FD, XY, YZ
zx side should be proportional. That's all. These are the two types of conditions: angle same and sides proportional. Draw and then answer. ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल पी क्यू आर, बहुत छोटा भी नहीं बनाने का वरना लिखने में प्रॉब्लम होता है. ट्राइंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर. x is equal to 60. Put 60 here. Y is equal to 30. Put 30 here. Find R. Put question mark here. और बीच में ये सिमिलर का सिंबल करने का, ताकि तुम भूल ना जाओ. यू आर नॉट सपोज टू प्रूव सिमिलर, यू हैव बीन गिवन दैट दे आर सिमिलर. तो क्या लिखेंगे? फॉर ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180. सो 60 प्लस 30 प्लस जेड is equal to 180. Therefore angle Z is equal to 180 में से 60 30 माइनस Z is 90. तो ये मिल गया 90. क्यों ढूंढा मैंने? Because Z is equal to R. क्यों? Because triangles are similar. Now angle Z is equal to angle R because triangle triangle XYZ is similar to triangle PQR. Therefore angle R is 90. Sum over. In fact angle P पूछा है तो वो भी 1 सेकंड में मिल जाएगा. एंगल Q पूछा है वो भी मिल जाएगा. और एंगल R तो मिल ही गया 90. Draw the figure and answer. Triangle ABC similar to DEF. Triangle ABC similar to DEF. ABC DEF. Angle A 25. Put in the given information in the figure always. E 35. Find angle C. Since triangle ABC is similar to, हाँ ये भूल मत जाना, दोनों सिमिलर है मतलब एंगल ऑलरेडी सेम है. Therefore angle A is equal to angle D is equal to 25. Angle B is equal to angle E or E 35. And angle C is equal to angle F is equal to question mark. तो 35 का जोड़ीदार 35 बन गया और हमने लिख भी लिया अच्छे से मेथड के साथ that this is 35. पूछा हो तो लिखो, ना पूछा हो तो भी लिखो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. 25 but the main question still remains, what is C? Triangle ABC, angle A plus B plus C is 180. 25 plus 35 plus C is 180. 180 में से 60 माइनस, फाइनल आंसर 120. इतना तो लिखना चाहिए. विदाउट राइटिंग इफ यू हैव सॉल्व्ड सम्स देन डोंट डू इट. मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम लिखना सीखो. सो प्लीज राइट ऑल दी सम्स वंस अगेन. जो તમે વેટ ઉતારી હોય તો, કે તો કર્યું જ ના હોય તો.
17 sum, draw the figure in triangle ABC. ओके, तो पहले इन ट्राइंगल ABC का मतलब ट्राइंगल ए बी सी, DE parallel to BC. So a line is drawn like this. This is DE and DE is parallel to BC. Angle B 45. Angle B 45. Angle C 35. Find angle E and A. एंगल E एंड एंगल A फाइंड करना है. अब कॉन्सेप्ट ऐसा है दैट सिंस DE is parallel to BC, therefore छोटा ट्राइंगल इज सिमिलर टू मोटा ट्राइंगल. मतलब therefore ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC. और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है therefore ADE का A और ABC का A सेम, ADE का D और ABC का B सेम, ADE का E और ABC का C सेम. therefore E पूछा है, E is equal to C. therefore angle E is equal to 35 क्योंकि C 35 है. और एंगल A पूछा है, उसके लिए अलग से पूरा एक सेक्शन, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं इसको. इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180. एंगल A प्लस 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 180. एंगल A 100. सम ओवर. तो E पूछा है 35 35, D पूछा होता 45 45 और A 35 45 का एंगल सम प्रॉपर्टी करके 100. MN parallel to BC. Answer the questions. पहला क्वेश्चन है AM अपॉन व्हाट इज AN अपॉन NC. So you have to literally move your pencil or pen over what it's trying to say. AM upon question mark AN upon NC. तो राइट साइड AN अपॉन NC है, तो लेफ्ट साइड AM अपॉन MB होगा. आंसर इज MB. It's just intuition. AM upon AB. AM upon AB. AN upon what? AN upon what? AC. आंसर मिल गया. AC. And MN upon what? MN upon BC. सो छोटा ट्राइंगल का साइड अपॉन बड़ा ट्राइंगल का साइड, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल. एंड लास्ट MB अपॉन AB. MB अपॉन AB. NC upon what? AC. So figure helps a lot. Use the figure and you can find the answer like that.
पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू बी सी पैरेलल, तो अचानक सारे कॉन्सेप्ट जाग उठते हैं क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं और एक डायग्राम से कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन, AP अपॉन व्हाट इज AQ अपॉन QC? AP upon what is AQ upon QC? PB, टुकड़ा अपॉन टुकड़ा, टुकड़ा अपॉन टुकड़ा, आंसर PB। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP AB, AP AB, AQ upon what? AQ upon AC। PQ upon what? PQ upon BC, टुकड़ा अपॉन फुल। एंड लास्ट, PB अपॉन व्हाट? PB अपॉन व्हाट इज QC अपॉन AC? QC अपॉन AC, तो छोटा अपॉन फुल, छोटा अपॉन फुल, फुल है AB, आंसर इज AB। In all 5 sums inside the table, use the same figure. Formulas are given. Okay, कोने में फॉर्मूलाज रखते हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट है, ADDB AEC ADSC EDBD, उसे सब हवा निकल जाएगी। यहाँ पे देखो, टुकड़ा अपॉन फुल, टुकड़ा अपॉन फुल, टुकड़ा अपॉन फुल, टुकड़ा अपॉन टुकड़ा, टुकड़ा अपॉन टुकड़ा, ऐसे याद रखो। ये सब याद नहीं रखने का, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैथ्स। 5 सम सॉल्व करने हैं। कॉपी 1 2 3 4। ऑलराइट, फर्स्ट सम, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है पहले फिल इन द डायग्राम। AD 3.6, DB 2.4, AB question mark, AE question mark, EC 1.8, AC question mark, टुकड़ा अपॉन टुकड़ा इज टुकड़ा अपॉन टुकड़ा, AD अपॉन DB is AE upon EC, 3.6 upon 2.4, AE upon 1.8, 12 3s are 12 2s are, AE upon 1.8, AE is 3 into 1.8 upon 2, 2.7 final answer, AE 2.7,
और ए बी और ए सी टोटल करके पता चल जाता है. 2.7 प्लस 1.8 4.5 and 3.6 plus 2.4 6. AB 6, AC 4.5. फिर से एक बार, AD पता नहीं, DB पता नहीं, AB 6.2. AE पता नहीं, EC 3.15, AC 4.2. तो यहाँ पे नीचे का टुकड़ा गिवन है और फुल है, और यहाँ पे नीचे का टुकड़ा मिसिंग और फुल है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ EC अपॉन AC. EC अपॉन AC DB अपॉन AB. तो नीचे का टुकड़ा अपॉन फुल, नीचे का टुकड़ा अपॉन फुल, DB अपॉन AB. 3.15 अपॉन 4.2 DB अपॉन 6.2. क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व. 3.15 is 315 upon 100 इंटू 6.2 ऊपर और 4.2 नीचे, जिसका दोनों का डेसिमल गायब हो जाएगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू डील विथ. 3 14 जा 3 105 जा 7 2 जा 7 15 जा 2 31 जा 31 into 15 upon 100. 31 into 15 465 upon 100. 4.65 आंसर आ जाता. DB 4.65. DB 4.65. अब सिर्फ प्लस माइनस करना बाकी है. 4.65. 6.2 में से 4.65 निकाल दो तो बचा हुआ AD मिल जाएगा. 6.2 माइनस 4.65 1.55. और 4.2 में से 3.15 निकालो. 4.2 माइनस 3.15 1.05. Sum over. Similarly, you have to do the rest of the sums whose answers I will directly show. You can tally your worksheet.
So this is how you do it. I hope all my answers are correct. I could not find any ready-made answers, so I could not save my time, and that's why I am solving it as quickly as possible. पूरा 5.10, ये 2.55, तो ये उसका डिफरेंस. सो 5.10 minus 2.55, 10 minus 55, 0, 10 minus 55, 4 minus 2, 2, 2.55. And 2.55, 2.55 सेम, तो 3.4, 3.4 भी सेम होता. And 3.4 plus 3.4, 6.8. Happy homework. I hope you have learned something from this. Geometry is difficult, therefore हर एक होमवर्क का मैं वीडियो सम बनाऊंगा. तुम्हें वो वीडियो वापस देखना है like a lecture and learn from it. And make sure if you have not done homework or most of your homework is wrong, then you write it again by looking at this video. Thank you.